ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و طبیب قلوبنا محبوب رب المغربان جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین. ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین. ولعن اللہ علی غاصبین حقوقہم. ولعن اللہ علی منکرین فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وشرافتہم وجلالتہم وولایتہم وعنایتہم وکرامتہم وعطشہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین حضرات، ماہ رمضان المبارک ہے، ماہ مقدس ہے، اور اس مہینے کی فضیلت یہی ہے کہ اس مہینے میں فقط اللہ کی عبادت کی جائے، اس مہینے میں فقط یاد خدا دل میں بسائی جائے، یاد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دلوں میں بسائی جائے. چونکہ عام دنوں میں جو ذکر کیا جاتا ہے اس کا ثواب محدود ہوتا ہے، مگر آج اس مہینے میں جو ذکر کیا جاتا ہے اس کا ثواب، ہر عمل کا ثواب 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ انہوں نے ماہ رمضان میں میرا نام لیا ہے، ان کے تمام گناہ مٹا دو. میرے رسول کا نام لیا ہے، ان کے تمام گناہ مٹا دو. میرے ولی کا نام لیا ہے، میری صدیقہ کا نام لیا ہے، ان کے تمام گناہ مٹا دو. یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ ہمیں رمضان جو ملا ہے ادھورا ذکر کرنے کے لیے نہیں ملا ہے. ہمیں رمضان ملا ہے ایک سلسلے وار ذکر کرنے کے لیے. عزیزان گرامی، آیت تطہیر قرآن کا سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر بھی 33، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک صرف اور صرف اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت کو نجاست سے دور رکھے. کتنا دور رکھے؟ جتنا کہ دور رکھنے کا حق ہے. یعنی اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ اہل بیت نجاست کے قریب نہیں جا سکتے، نجاست اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتی. اب رونا کس بات کا ہے؟ جو مجلسوں میں آ رہا ہے سمجھ لو وہ آیت تطہیر چومنے آ رہا ہے. جو مجلسوں سے دور ہے تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا اہل بیت کے پاس نجاست کبھی نہیں آ سکتی ہے. یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے نا. نجاست میں رہے گی، طہارت میں نہیں آئے گی. نجاست تو نجاست میں رہے گی، کبھی بھی طہارت میں نہیں آ سکتی، کیونکہ نجاست کا مقدر ہی نجاست ہے. تو عزیزان من، یہ آیت میں نے اس لیے انتخاب کیا کہ آج کا دن ہے شب جمعہ، یعنی یہ عظیم رات ہے. شب جمعہ ہفتے کی بڑی عظیم رات ہوتی ہے. اس دن اللہ بڑا مہربان ہوتا ہے، زندوں کے ساتھ ساتھ مردوں پہ بھی بڑا مہربان ہوتا ہے. آج کے دن آپ فاتحہ وغیرہ کراتے ہیں نا مرحومین کی، آج کے دن بڑا مہربان ہوتا ہے. اور اس لیے انتخاب کیا کیونکہ آج کے دن ہم پڑھتے ہیں حدیث قصہ، اور حدیث قصہ سے ہی ہمیں پتہ چلا کہ آیت تطہیر کا مصداق کون کون ہے. حدیث قصہ اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے کہ 5 افراد ایک جگہ جمع ہوئے ہیں. جب وہ 5 افراد جمع ہوئے تو جناب جبریل کی آنکھیں نور سے خیرہ ہونے لگی.
जनाब जिब्रील को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। भाई जिब्रील कौन है? वो जो कभी झूला झुलाने आता है, कभी झाड़ू लगाने आता है, कभी नौकरी करने आता है, कभी चक्की चलाने आता है। मगर जब पांचों को एक साथ देखा तो जिब्रील को पूछना पड़ गया, या रब्बे वमन तहतल किसा, परवरदिगारा चादर के नीचे कौन है? आवाज आई, हुम फातिमा बाबूहा बाबालूहा बाबनूहा। मैंने पूछा जिब्रील तुम तो यहाँ चक्की चलाते हो, जिब्रील तुम तो इनका झूला झुलाते हो, तुम तो यहाँ झाड़ू लगाते हो, तुम जब सबको जानते हो तो आज क्यों पूछ रहे हो कि या रब्बे वमन तहतल किसा? का क्या कहूँ, मैंने जब पांचों को एक साथ देखा तो नूर इतना ज्यादा हो गया कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भाई ये नूर है, एक महदूद नूर है। अगर इसके बराबर में एक और लाइट लगा देंगे क्या होगा? देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अगर 5 लाइट एक साथ आ जाएंगी तो कोई नहीं देख पाएगा। जहाँ 5 नूर जमा हो जाते हैं वहाँ जिब्रील जैसा मलक भी परेशान हो जाता है ना? वहाँ जिब्रील जैसा मलक भी परेशान हो जाता है। इसके आप जहन में रखिएगा कि नूर जमा हो गए, नूर जमा हो गए। अब ये बताइए क्या ऐलान हुआ? हुम फातिमा व अबूहा व बालूहा व बनूहा। कौन है? फातिमा है, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बच्चे हैं। इन सब में सबसे ज्यादा सिन रसीदा है रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा उम्र दराज है रसूल अल्लाह, सब रिश्तों में बड़े हैं रसूल अल्लाह, सब मर्तों में बड़े हैं रसूल अल्लाह। तो अल्लाह ने रसूल अल्लाह से तारुफ नहीं कराया, अल्लाह ने तारुफ रसूल अल्लाह से नहीं कराया, बल्कि कहा फातिमा, फातिमा के बाबा, फातिमा के शौहर। मैंने पूछा मेरे खुदा जरा बता तो दे, जब सारी कायनात का मालिक रसूल है उसके होते हुए तूने फातिमा के नाम से क्यों तारुफ कराया? आवाज आई, अभी थोड़ी देर के बाद मुझे आयते ततहीर भेजनी है, अभी थोड़ी देर के बाद मुझे आयते ततहीर भेजनी है। मैं बताऊंगा कि आयते ततहीर में कुछ पाक लोग हैं, मुसलमान चाहेगा इसको भी घुसेड़ दे, मुसलमान चाहेगा उसको भी घुसेड़ दे, मुसलमान चाहेगा उसको भी घुसेड़ दे। मैंने पहले ही ऐलान करके बता दिया, आयते ततहीर के अंदर बतूल के रिश्तेदार आएंगे, रसूल के रिश्तेदार मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयत ततहीर में बतूल के रिश्तेदार आएंगे, रसूल के रिश्तेदार नहीं, क्योंकि बतूल के रिश्तेदारों में रसूल के रिश्तेदारों में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। मेरी जबान में सुनिए तो मैं गारंटी नहीं लेता कि बतूल के रसूल के सारे रिश्तेदार नेक हैं, मगर बतूल के रिश्तेदार वो हैं कि अगर बाबा है तो अंबिया के सरदार, शौहर है तो औलिया के सरदार, बच्चे हैं जवानाने जन्नत के सरदार, जनाब अबू तालिब ससुर है कुरैश के सरदार, सरदारों का खानदान है बतूल। सारे रिश्तेदार बतूल के कौन है? सरदार है, सारे रिश्तेदार बतूल के सरदार हैं। जनाब ज़हरा का एक लक़ब है सिद्दीक़ा, सिद्दीक़ा, सिद्दीक़ और सिद्दीक़ा ये 2 लफ्ज होते हैं। सिद्दीक़ यानी सच्चा, सिद्दीक़ा यानी सच्ची। तो मुझे एक बात बताइए, जो लोग मजलिस में नहीं आए, जब आप बाहर जाएंगे, बाहर जाने के बाद वो आपसे पूछेंगे भाई मजलिस किसने पढ़ी, तो आप क्या जवाब देंगे? मेरा नाम लेंगे ना, है ना? तो आपने झूठ बोला या सच बोला? सच, सच बोला ना, तो सच तो आपने भी बोला, फिर आप सिद्दीक क्यों नहीं है? आप सिद्दीक क्यों नहीं है? आप सिद्दीक, हमारी औरत सिद्दीका क्यों नहीं है? भाई सच तो हम भी बोल रहे हैं, सच जनाब ज़हरा ने भी बोला है। तो वजह क्या है कि उनके यहाँ सिद्दीक भी पाए जाते हैं, सिद्दीका भी हैं, हमारे यहाँ फिर भी कोई सिद्दीक नहीं है, फिर भी कोई सिद्दीका नहीं है। का क्यों? इसलिए तुम सच बोलोगे, वो जो बोलती है सच हो जाता है। लिबास तैयार नहीं होते हैं मगर आ जाते हैं, आलम अरवाह में जिस्म नहीं होते हैं मगर 7 बेटे मिल जाते हैं। तवज्जो है ना आपकी? भाई ये जो बोलते हैं वो हो जाता है। ये जो मैं कहूंगा कल को बारिश होगी, क्या होगी? कोई गारंटी नहीं है ना? मगर बतूल कह दे कल कयामत आएगी, तो यानी इनके यहाँ हमारे यहाँ सच का मेयार ये है, हम वो बोलते हैं जो सच होता है, ये जो बोलती है वो सच होता है। ये सच के अलावा
कुछ नहीं बोलती हैं। तवज्जो आपकी बरकरार, अल्हम्दुलिल्लाह कम है, मुख्तसर है मगर मोतबर है। मुझे यही बात की खुशी होती है कि मजमा कम हो मगर सुनने वाला होना चाहिए, है ना। सिद्दीका है, आवाज दी, बच्चों ने पूछा अम्मा हमारे लिबास, जन्नत से आएंगे, जन्नत से आएंगे। भाई जन्नत से लिबास कौन लाया था? तुम बताओ रिजवान कौन लाया था? रिजवान जन्नत। रिजवान कोई छोटी मोटी पोस्ट तो नहीं है, कोई छोटी मोटी पोस्ट तो है नहीं। रिजवान मुख्तार जन्नत है। अगर चाहेगा रिजवान तो हमें जन्नत में भेजे, अगर ना चाहे तो हमें ना भेजे। रिजवान वो है। अब ये पूछिए रिजवान से, भाई इतनी बड़ी पोस्ट पर तुम हो, इतने बड़े ओहदे पर हो, आए क्या हो? दर्जी बनकर। भाई ये ना देखो मैं दर्जी बनकर आया हूँ। रिजवान ने कहा ये ना देखो मैं दर्जी बनकर आया हूँ, ये देखो किसका दर्जी बनकर आया हूँ। अरे भाई किसी के बनकर आया हो, इमाम हसन के बनकर आया हो, इमाम हुसैन के बनकर आया हो, मगर पोस्ट तो कम हो गई, ओहदा तो कम हो गया। कहाँ रिजवान, कहाँ दर्जी? ओहदा तो कम हो गया। उन्होंने कहा भाई ये क्या बात हुई? भाई मेरी समझ में नहीं आया कि जिनका नाका बनने के बाद रसूल का रुतबा कम नहीं होता, उनका दर्जी बनने के बाद मेरा रुतबा कैसे कम होगा? मेरा रुतबा कैसे कम होगा? जब रसूल का रुतबा कम ना हुआ तो मेरा रुतबा कहाँ से कम होगा? बस जुड़ जाइए, बस 2-3 बातें आप तक, बस 10 मिनट की गुफ्तगू और है और जहमत तमाम कर दूंगा। तो ये है सिद्दीका, इनके बच्चे हैं सिद्दीक। ये जब अच्छा लिबास तो पहन लिया जन्नत का, बच्चों ने लिबास तो पहन लिया जन्नत का। अब लिबास क्या है? आलीशान। लिबास की शान क्या है? आलीशान, है ना। अब जब सुबह को निकले ईद वाले दिन तो क्या देखा? सारे बच्चे सवारियों पर हैं, मगर ये 2 बच्चे प्यादा हैं, पैदल हैं। नाना जान सारे बच्चे सवारियों पर हैं, हमारी सवारी कहाँ है? नाना समझ गए, जो बच्चे कहना चाहते थे नाना समझ गए, जो बच्चे कहना चाहते थे नाना समझ गए। बोले एक इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ। भाई ये देखिए, मैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, ये बच्चे हैं आपके साथ, इनके जो बड़े हैं बाजार लेके जाएंगे। इन बच्चों ने कहा कि आइसक्रीम खाना है। आपने कहा भाई आइसक्रीम नहीं, आओ मैं तुम्हें बिरयानी खिलाता हूँ। तो इतनी जल्दी मान जाएंगे? नहीं मान जाएंगे, नहीं मानेंगे ना, क्योंकि बच्चों के अंदर फितरतन जिद होती है। मगर अजीब बच्चे थे, अजीब बच्चे थे। कहा एक इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ। दोनों बच्चे पुश्त पर सवार हो गए। जब चले तो एक हासिद बड़ा, एक मोतरिस बड़ा, एक मुगिस बड़ा, और उसने तंज के आलम में, तंज करते हैं ना, ताना देते हैं ना, टोन जिसे कहते हैं, तंज के आलम में कहा नेमर राकिब, कितने अच्छी सवारी, कितनी अच्छी सवारी है, यानी ये जो सवारी है कितनी अच्छी सवारी है। रसूल अल्लाह ने कहा थोड़ी सी नजर और ऊपर उठा लो, थोड़ी सी नजर सहमत कर लो। ये ना कहो कितनी अच्छी सवारी है, कहो कितने अच्छे सवार हैं। तो खत्म इनकी बात। ये आए थे ताना करने, इनके ऊपर ही ताना हो गया। तो ये ना देखो कितनी अच्छी सवारी है, ये देखो कितने अच्छे सवार हैं। इन्होंने कहा, हमारी जबान में कहते हैं ना मीठी मारना, है ना, मक्खन लगाना, मस्का लगाना, है ना। इन्होंने मस्का लगाने की कोशिश की, मीठी मारी। इन्होंने कहा नबी अल्लाह आप थक जाएंगे, नबी अल्लाह आप थक जाएंगे, इन बच्चों को मेरे हवाले कर दे, मेरी पुष्ट पर बिठा दे। भाई अगर मेरा जवाब हो तो खामोश रह जाइएगा, अगर रसूल का जवाब पसंद आया हो तो बोलिएगा, और ऐसे बोलिएगा कि जिब्रील को यहाँ आके आपका सलाम लेना पड़े। कहा भाई नबी अल्लाह आप थक जाएंगे, ये बच्चा आपके पुष्ट पर है, थक जाएंगे, इनको मेरे हवाले कर दीजिए। नबी अल्लाह ने कहा खामोश, क्या तू जानता नहीं फूल जिस दरख्त के होते हैं उसी पर अच्छे लगते हैं। अरे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अरे रिसालत या रसूल अल्लाह, अरे विलायत अलीउल वलीउल्लाह। फूल जिस दरख्त के होते हैं बस उसी पर अच्छे लगते हैं। अब गुलाब का फूल आप जामुन पर लगा देंगे
है ना, तो गुलाब जामुन हो जाएगा तो वो मिठाई हो जाएगी। आप पहले समझ जाता, ये होता है मजलिसों का फायदा कि मौलवी के कहने से पहले नुक्ते पकड़ लिए जाए, यही होते हैं सामईन, है ना। तो ये दस्तूर है कि भाई जिस दरख्त का फूल होगा उसी दरख्त पर अच्छा लगेगा। तो ये है सिद्दीक़ा, जनाब सिद्दीक़ा है ये। अज़ान मोहतरम, ये जनाब ज़हरा वो हैं कि जिनके लिए रसूल अल्लाह ने कहा कि अगर अली ना होते, बहुत बड़ा एक लफ्ज़ है, अगर अली ना होते तो आदम से लेके ईसा तक सारे नबी हैं, सारे मासूम हैं, सब पैगंबर हैं, मगर आदम से लेके ईसा तक कोई ज़हरा के बराबर अगर अली ना होते, अगर अली ना होते। भाई यहाँ पर एक शख्स मसलन मजलिस सुन सुन के, हमारे बच्चों में आदत होती है मजलिस पढ़ना सीख जाते हैं, सब बच्चे है ना, बड़े भी पढ़ने लगे माशाल्लाह। हसन भाई आप देखे कितने, तो अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी मजलिस नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, मगर आप में से कोई एक शख्स मसलन ये रेहान है, इरफान है, बच्चे लड़के हैं हमारे, ठीक है, ये कोई तकरीर करने लगे, कभी रेहान ने मजलिस पढ़ दी हमारी गैर मौजूदगी में, तो अच्छा ये रेहान पढ़ रहे थे कि पढ़ते पढ़ते हमसे कहा मौलाना इनके बाद आप भी पढ़ दीजिए थोड़ा सा ताकि गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। हमने जब पढ़ी तो लोगों को रेहान की मजलिस इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, लोगों ने कहा अगर आज सुल्तान ना पढ़ते तो रेहान की मजलिस टॉप पर थी। मिसाल समझ गए आप, मिसाल समझ गए आप, इनको मेरे बराबर नहीं लाए हैं, मुझे इनके बराबर लाने की कोशिश की। अगर मैं ना होता तो ये बेहतर, अगर मैं ना होता तो ये बेहतर। रसूल अल्लाह कह रहे हैं अगर अली ना होते, भाई ज़हरा को अली के बराबर नहीं लेकर गए हैं, अली को ज़हरा के खुल्ले इस्लाम मौलाए कायनात हजरत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हक अली दा नारा हैदरी। ज़हरा को अली तक नहीं लेके गए, अली को ज़हरा तक लेकर आए हैं, अली को ज़हरा तक लेकर आए हैं। फिर सुन लीजिए, ईमान ताज़ा करूं, फिर सुन लीजिए, अगर अली ना होते तो ज़हरा के कोई बराबर ना होता। जुमला अब आएगा, अगर अली ना होते तो ज़हरा के कोई बराबर ना होता। अली कोई मामूली जात का नाम नहीं है, क्यों? मर्द मैदान अली है, ईमान अली है, मदीन अली है, जनाब अली अली है, मददगार अली है, ऐनुल्लाह अली है, वलीउल्लाह अली है, अली है। मेरे सरकार में कोई लफाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ जब अल्लाह की तरफ से इतनी दी हुई फजीलतें पाने के बाद कोई अली बनता है तो ज़हरा के बराबर। अली ना होते तो ज़हरा के कोई बराबर ना होता, कोई बराबर ना होता। बस आखिरी लम्हात में आ गई है गुफ्तगू, आखिरी लम्हात में सुन लीजिए, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा इसका। यानी पता चला कि ईमान से ईमान को मिलाया, है ना। हमारे यहाँ क्या मिलाया जाता है? दौलत कितनी है, जब रिश्ता होता है तो क्या देखते हैं? दौलत कितनी है ना। ये देखते हैं सैयद है या गैर सैयद है, तकवा नहीं देखते, तकवा नहीं देखते। सैयद होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बड़ी दुकान होनी चाहिए, मकान होना चाहिए, ये चीज़ें मिलाते हैं। मगर अहले बैत के क्या मिलाते हैं? ईमान से ईमान से ईमान मिलाते हैं। अब ये बस जहनों में रखिए, ईमान से ईमान मिलाते हैं। बहुत ही जहन को तरोताज़ा करने वाला, ईमान को ताज़ा करने वाला वाक़या सुना रहा हूँ आपको, लुत्फ आ जाएगा इंशाअल्लाह। ईमान से ईमान को मिलाते हैं। और जो अली वाले हैं, जो हकीकत में अली वाले हैं, वो भी आज भी ईमान से ईमान मिलाते हैं, दौलत नहीं मिलाते, वो नाम नहीं मिलाते, वो ईमान से ईमान मिलाते हैं, तकवे से तकवा मिलाते हैं। भाई एक आलिम दीन गुजरे हैं, मुक़द्दस अर्दबेली, मुक़द्दस अर्दबेली। अर्दबेल ईरान का एक शहर है। मुक़द्दस अर्दबेली जिन्होंने कई सारी चीज़ें उनसे हम तक पहुँची हैं मुक़द्दस अर्दबेली से, और इमाम हुसैन के ज़ियारत वगैरह बहुत करते थे ये, और नजफ़ की ज़ियारत बहुत करते थे।
ہم نے مانا ہی ایسے علماء کو ہے جو اہل بیت سے متمسک ہوں، ہے نا. ہمارے یہاں ٹیڑھے منہ والے علماء کو نہیں مانا جاتا، ہمارے یہاں کاڑے دجال کو نہیں مانا جاتا ہے، ہمارے یہاں علماء حقہ کو مانا جاتا ہے، جو حق علماء ہے. تو جن جو ہے مقدس اردبیلی جو ہیں، ان کے والد جو ہیں مقدس اردبیلی کے، وہ ایک نہر کے پاس بیٹھے تھے. نہر سے پانی آ رہا ہے، ادھر سے پانی آ رہا ہے، اس پانی میں تیرتا ہوا ایک سیب آیا. انہوں نے سیب کو دیکھا، اٹھایا اور کھا لیا. بھوک لگ رہی تھی، کھا تو لیا، مگر کھانے کے بعد خیال آیا پتہ نہیں کس کا تھا. اجازت تو ضروری ہے نا، ایک سیب تھا، ایک ہی سیب تھا، اجازت تو ضروری ہے، پتہ نہیں کس کا تھا. اب پیٹ میں تو چلا گیا مگر سکون نہیں مل رہا ہے، اطمینان نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کو اب ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا مالک ناراض ہو کہ میرا ایک سیب کھا لیا. تو انہوں نے کہا بھائی اب اس سے اجازت لی جائے، معافی مانگی جائے، جس کا سیب تھا اس سے اجازت لی جائے. مقدس اردبیلی کے والد نے کہا کوئی بات نہیں، اگر کبھی دھوکے سے کسی کا کچھ کھا لو تو بعد میں افسوس کر لینا. بہت سے لوگوں کو آج تک نہیں ہوا ہے نا، بھائی کی زمین کھا لی آج تک افسوس نہیں ہے، بہن کا حق کھا لیا آج تک افسوس نہیں ہے، ماں باپ کے بنائے ہوئے مکان میں رہ کے ماں باپ کو باہر نکال دیا آج تک افسوس نہیں ہے. اگر کچھ ہو گیا ہے غلطی سے تو بعد میں اس کی تلافی کر لو، معافی کر لو، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا یہ دیکھتے ہیں سیب آ کہاں سے رہا تھا. اب جدھر سے پانی آ رہا تھا یہ ادھر چلنے لگے. جب ادھر چلے تو وہاں ایک سیب کا درخت دیکھا انہوں نے، اور دیکھا کہ پیچھے اور کھیت بھی ہیں سیب کے، اور بھی پیڑ لگے ہوئے ہیں. تو وہاں ایک مکان بھی دیکھا انہوں نے. مکان دیکھا تو انہوں نے دخل بات کیا. ایک شخص باہر نکل کر آئے، بولے جی بتائیے. بولے وہ آپ کا ایک سیب تیرتا ہوا آیا تھا اور ہم نے کھا لیا. بولے ٹھیک ہے. بولے ٹھیک نہیں بھائی، اجازت دو. ٹھیک ہے کیا اجازت دو ورنہ وہ حرام ہے میرے لیے. ایک سیب کی بات تھی بس. تو کہا کہ اجازت ہے، چلو اب تو کھا لیا جاؤ، اجازت ہے. یہ پلٹے، اس نے دروازہ بند کیا. اچانک پھر دروازہ کھولا. بولے رکو رکو کیا ہوا؟ بولے یہ جو باغ ہے نا یہ میرا اکیلے کا نہیں ہے، میرے بھائی کا بھی ہے. میرے بھائی کا بھی باغ ہے یہ. کہا اس میں جتنے سیب ہیں آدھے پہ میرا حق ہے اور آدھے پہ میرے بھائی کا حق ہے. دیکھیے اجازت تو ملی ہے مگر آدھے سیب کی. اب یہ بڑے پریشان کہ بھائی آدھا تو چلو حلال تھا مگر آدھا تو حرام ہے نا. اب کیا کیا، اجازت تو ہم نے دے دی مگر آدھے سیب کی اجازت لینے کے لیے بھائی کے پاس جاؤ. بولے آپ کے بھائی کہاں ہے؟ نجف الاشرف میں، مولا کے برابر میں، مولا کے دیار میں. اچھا وہاں پر ہے. اردبیل سے لے کر نجف، ایران کا جو شہر اردبیل، وہاں سے لے کر نجف، عراق کا شہر نجف، تقریباً 1200-1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہ وہاں سے چلے اور چلنے کے بعد یہ وہاں پر پہنچے. اور پہنچنے کے بعد انہوں نے جس طرح سے بھی، اچھا یہ زیارت کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے مگر ان کو یاد آیا پہلے وہاں چلو جس کا سیب کھایا ہے. سوچ رہے تھے پہلے حرم میں جائیں گے، پلٹ آئے پہلے ان کے گھر چلو جن کا سیب کھایا ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ اگر مولا کی زیارت کے لیے جانا ہے تو حلال کھا کے جانا، حرام کھا کے نہ جانا ہے نا. کسی کا دوسرے کا حق مار کے مولا کی زیارت کے لیے نہ جانا، زیارت قبول نہیں ہوگی. سنیے گا انشاءاللہ نتیجہ اس کا جو نتیجہ ہے بہت ہی زبردست نتیجہ ہونے والا ہے اس کا. یہ آنے کے بعد ان سے دخل بات کیا اور انہوں نے کہا آئیے، دسترخوان وغیرہ سب لگا. بولے میں اردبیل سے آیا ہوں اور ایسے ایسے بات ہے، میں آیا ہوں. دسترخوان لیا. بولے دیکھیے میں کھانا بعد میں کھاؤں گا، بس مجھے آدھے سیب کی اجازت دے دیجیے. بولے یہ کہ ماجرا ہے بھائی، آدھے سیب کی کیا؟ بولے وہ آپ کا سیب آیا تھا میں نے کھا لیا، آدھا آپ کے بھائی کا تھا انہوں نے اجازت دے دی، آدھا آپ کا رہ گیا. آدھے سیب کی آپ اجازت دے دیجیے. کہنے لگے بھائی اجازت تو دوں گا مگر ایک شرط ہے. بولے شرط کیا ہے؟ بولے میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گی. اب جب یہ آپ سے کوئی کہتا ہے میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گی، ذہن میں کیا آتا ہے؟ ضرور کوئی اس میں بیماری ہوگی، ضرور کوئی نقص ہوگا، ضرور کوئی برائی ہوگی، ضرور کوئی عیب ہوگا. مگر انہوں نے سوچا کوئی اگر عیب ہوگا بھی تو کتنا، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال، یا تو ہم چلے جائیں گے یا وہ چلی جائیں گی. لیکن یہ جو آدھا سیب ہے یہ نہیں چھوڑے گا کبھی بھی. یہ تو 50 سال کا وقت ختم ہے مگر یہ جو آدھا سیب ہے یہ کبھی نہیں چھوڑے گا. کیا کیا جائے؟ بولے راضی ہو گئے. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھ لو اتنی جلدی ہاں نہ کرو، اتنی جلدی ہاں کرنا ٹھیک نہیں ہے، میری بیٹی میں عیب ہے. بولے وہ تو ہم معلوم ہے، سوچ لیا ہم نے، پہلے ارادہ کر لیا، مگر آپ بتا دیجیے کیا عیب ہے.
बोले आंखों से अंधी है, देख नहीं सकती। अच्छा, हाथों से लूली है, कुछ कर नहीं सकती। पाँव से लंगड़ी है, कुछ कर नहीं सकती, चल नहीं सकती। कानों से बहरी भी है, जबान से गूंगी भी है। हम होते तो कहते उसमें है क्या, हम होते तो कहते उसमें है क्या। हमारी माँ ने तो बहुत अच्छी लड़की पसंद की हमारे लिए, हम क्यों करेंगे भाई हमारी माजूर लड़की से शादी। तो ये कहने लगे कुछ भी है मगर आधा सेब, कुछ भी है मगर आधा सेब। ये बड़ा खतरनाक मामला है। नीचे बैठो आराम से, आधा सेब। तो ये जब आधे सेब का मसला हुआ, उन्होंने कहा ठीक है मैं कर लूंगा शादी। अब जब शादी हुई, घर पर ये पहुंचे तो इन्होंने क्या देखा, जिसको लेकर आए थे ना, जिस बीवी को, जिसको बीवी बनाकर लेकर आए थे, वो पैरों से चल रही थी, मुंह से बोल रही थी, आंखों से देख रही थी, कानों से सुन रही थी। ये तो परेशान हो गए, ये हुआ क्या है। तो इनके अब्बा ने कहा था, देखिए मुकद्दस अर्दवेली की होने वाली माँ है, माँ है, माँ है ना। जब माएँ ऐसी होती हैं तो ऐसे उलमा पैदा होते हैं, है ना। जब ये पहुंचे, इन्होंने कहा भाई तुम्हारे बाप ने कहा था तुम आंखों से नहीं देख सकती, तुम मुंह से बोल नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, हाथों से काम नहीं कर सकती, पैरों से चल नहीं सकती। बोले बिल्कुल सही कहा मेरे अब्बा ने, मेरे वालिद ने बिल्कुल सही कहा। का क्या मतलब, कि मैं आंखों से देख नहीं सकती किसी का बुरा होते हुए, मैं गूंगी हूँ किसी की बुराई नहीं करती हूँ, मैं बहरी हूँ किसी की गीबत नहीं सुनती हूँ, मैं लंगड़ी हूँ कहीं चलती नहीं हूँ, मेरे हाथ खराब हैं, यानी मैं कोई ऐसा काम नहीं करती हूँ जो खुदा को पसंद ना आए। तो मुकद्दस अर्दवेली ने पहले बाप के जुमले को याद किया, फिर बीवी की बात सुनी, उसके बाद समझ गए यहाँ नजफ अशरफ तक मुझे आधा सेब नहीं लाया है, ईमान खींच कर लाया है। मुकद्दस अर्दवेली ने कहा ये आधा सेब नहीं लाया है, ईमान खींच कर लाया है। ईमान से ईमान मिलाना था ना, ईमान से ईमान मिलाना था, आधा सेब नहीं लाया। भाई देखिए, इंसान के दिल में अगर ईमानदारी हो तो आधा सेब भी परेशान करता रहता है, अगर बेईमानी हो तो पूरा बाग खा लो, एहसास तक नहीं होता। मोहम्मद अगर ईमान हो तो आधा सेब भी सुकून नहीं लेने देता, और अगर बेईमानी हो पूरा बाप खा लो। एहसास ही नहीं होता कुछ किया है, एहसास ही नहीं होता। एहसास तो क़यामत में होगा, तो सवालात करेंगे फरिश्ते, जब एहसास होगा तुम्हें। बस अज़ान मन, ये जनाब सैयदा का घराना है, जहाँ पर नूर ही नूर रहते हैं, जहाँ पर सरदार ही सरदार रहते हैं, जहाँ पर इस्मतें ही इस्मतें रहती हैं, गुनाह होते ही नहीं है। एक और जुमला सुन लीजिए, मजलिस तमाम कर रहा हूँ। जहाँ पर गुनाहों का, जहाँ पर बुराइयों का, जहाँ पर नजासतों का आना जाना ही बंद है, आना जाना ही बंद है, ये जनाब सैयदा हैं, जिनके एहतराम में रसूल अल्लाह खड़े होते थे। बस ये आखिरी लफ्ज़ है, जिनके एहतराम में रसूल अल्लाह खड़े होते थे। मगर तरतीब सुन लीजिए, आज शायद इस लिहाज से पहली मर्तबा तरतीब सुन रहे होंगे आप। तरतीब सुनिए, तरतीब क्या है। तरतीब यह है कि जनाब ज़हरा मौला अली के लिए खड़ी होती थी, जनाब ज़हरा के लिए रसूल अल्लाह खड़े होते थे, रसूल अल्लाह के लिए मौला अली खड़े होते थे। तीन बात है ना भाई। ज़हरा किसके लिए खड़ी हुई? मौला अली के लिए। मौला अली किसके लिए खड़े हुए? रसूल अल्लाह के लिए। रसूल अल्लाह किसके लिए खड़े हुए? जनाब ज़हरा के लिए। सब सरदार है ना, रसूल अल्लाह सरदार हैं, है ना, जनाब ज़हरा सरदार हैं, मौला अली सरदार हैं, ये सब एक दूसरे के लिए खड़े होते थे। क्या कोई ऐसा भी है जिनके लिए ये सब खड़े होते हो? नहीं, आपने तरतीब नहीं सुनी है, तरतीब फिर से सुन लीजिए, तरतीब फिर से सुन लीजिए। भाई मौला अली आए, मौला अली आए, जनाब ज़हरा खड़ी हुई, जनाब ज़हरा आई, रसूल अल्लाह खड़े हुए, रसूल अल्लाह आए, मौला अली खड़े हुए, मगर आ गए अबू तालिब, इधर से मौला अली खड़े हुए, इधर से रसूल अल्लाह खड़े हुए, इधर से जनाब ज़हरा खड़ी हुई। यानी जहाँ इस्मतें सब मिलके खड़ी होती है उसे अबू तालिब कहते हैं। जहाँ पर सारे सरदार खड़े हो जाते हैं उसे अबू तालिब कहते हैं। जहाँ सारी इस्मतें खड़ी हो जाती है उसे अबू तालिब कहते हैं। जनाब अबू तालिब
बहुत अजीम शख्सियत का नाम है। जनाब ज़हरा का घराना है जिनके घर में फ़कत सरदार हैं, इनके घर में गुलाम नहीं होते हैं, और जब गुलाम होते भी हैं ना वो कुरान से गुफ्तगू करते हैं। जो गुलाम होते हैं ना वो सलमान मिन्ना अहलुल बैत होते हैं, ये होते हैं इनके घर के गुलाम, ऐसे होते हैं इनके घर के गुलाम। ऐसे गुलाम अगर हम अपने कोई गुलाम को हम आज़ाद करें तो वो पलट कर नहीं आएगा हमारे पास, मगर इनके गुलाम कहते थे क्यों हमसे क्या खता हो गई जो आज़ाद कर रहे हो। ये घराना है, मगर अफसोस इस घराने से दुश्मनी अजब तरह से निभाई गई है, बहुत अजब तरह से इस घराने से दुश्मनी निभाई गई, बहुत जुल्म सितम किया गया है इस घराने में। इस घराने का जो रसूल है ना उसको सुकून लेने दिया गया। जनाब ज़हरा की खुद पसलियां तोड़ी गई हैं। अब आने वाली है 19 रमज़ान, इब्ने मुलजिम मलऊन लानती वो आगे बढ़ेगा, मौला का सर सजदे में दोबारा कर देगा। ना जाने जनाब ज़हरा पर लहद के अंदर क्या गुजरेगी जब वो देखेंगे कुरान नातिक का सर 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। इस घराने पे बहुत जुल्म किए गए हैं, इस घराने को करबला में बुलाया गया, कभी अब्बास के शाने काटे गए, कभी अकबर के सीने में बर्छी मारी गई, कभी गर्दन से बड़ा तीर असगर के गले में मारा गया। ये सिलसिला चलता रहा। सबको मारने के बाद जो बचे थे उन्हें असीर कर लिया गया। यह असीर जब किया गया, इनको जब 2 साल के बाद रिहाई मिली है, आज़ादारों रिहाई पाकर जब जनाब सैयद सज्जाद वतन में आए हैं तो एक दिन महसूस किया कि घर के बाहर कोई आवाज़ दे रहा है, इरहमूनी इरहमूनी अना गरीब, इरहमूनी अना गरीब, कोई है जो मुझ पर रहम करे, मैं गरीब हूँ। जनाब सैयद सज्जाद बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद एक सवाल किया, क्या तू ही है जो कहता है तू गरीब है, तेरे ऊपर रहम किया जाए? कहा हाँ मैं ही हूँ। जब मैं कहता हूँ मेरे ऊपर रहम करो, मैं गरीब हूँ, कहते हैं तू कैसा गरीब है? अगर ये बता तू मदीने में मर गया तो क्या तुझे गुस्ल कफन नहीं मिलेगा? एक मर्तबा कहता है रोके कि कैसी बात करते हैं, मैं तो रसूल अल्लाह के शहर में हूँ, ये वो शहर है जहाँ पर रसूल अल्लाह ने पनाह पाई थी। अगर यहाँ मैं मर गया तो सारे मुसलमान हैं, कोई मुझे कफन देगा, कोई मुझे गुस्ल देगा, कोई मेरा जनाजा उठाएगा, कोई काफूर लेकर आएगा। अज़ादारों सैयद सज्जाद तड़प कर रोने लगे। एक मर्तबा करबला का रुख किया और कहते बाबा ये मुझको गरीब कहता है, अरे मैंने तो आपकी गुर्बत देखी है, कोई कफन देने वाला न था, कोई काफूर देने वाला न था, कोई जनाजा उठाने वाला न था। अजरुकुम अला ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे, सिवाय गम अहले बैत के अल्लाह आपको कोई गम न दे। बस एक मंजर सुन लीजिए जनाब सैयद सज्जाद के हवाले से और मजलिस तमाम हो रही है। बस एक मंजर है कि जब इनका काफिला कैदी बनाकर ले जाया जाता था तो काफिला जहाँ बीच बीच में रोका जाता था ना, जहाँ पर लोग ये जब थक जाते थे तो जनाब जब थक जाते थे तो अहले बैत का काफिला रोक दिया करते थे और खुद भी बैठ जाया करते थे। मगर फर्क इतना था कि अहले बैत को धूप में बिठाया करते थे, खुद साए में बैठा करते थे। अहले बैत को धूप में बिठाते थे, खुद साए में बैठते थे। तारीख कहती है जनाब सैयद सज्जाद की जो हथकड़ी और बेड़ियां थी ना वो इतनी जल रही थी कि गोश्त के अंदर पेवस्त होने लगी थी, गोश्त के अंदर पेवस्त होने लगी थी। एक मरतबा काफिला रोका गया और शिमर का खेमा लगा। सैयद सज्जाद धूप में बैठे हुए हैं। सैयद सज्जाद थोड़ा सरक कर खेमे के साए में चले गए। अंदर से शिमर ने अपने गुलाम से पूछा जरा देख तो मेरे खेमे के बराबर में कौन है? वो बाहर आया, क्या देखा? लागर एक सैयद सज्जाद बैठे हुए हैं। आवाज दी कैदी सैयद सज्जाद है, का उससे के मेरे खेमे के साए से उठ के चला जा। ये वापस आया और का शिमर कहता है तू यहाँ से उठ के चला जा। एक मरतबा कहा जनाब सैयद सज्जाद ने मैं यहाँ पर बहुत देर नहीं रुकूंगा, बस इतनी देर बैठा रहने दे कि मेरे हाथों की बेड़ियां ठंडी हो जाए, मेरे हाथों की बेड़ियां ठंडी हो जाए, अरे मेरी हथकड़ियां बेड़ियां ठंडी हो जाए, मुझे इतनी देर बैठने दे। अजरुकुम अला ज़हरा। ये वापस गया। उस मलून ने कहा ताजियाना उठा, सज्जाद को हटा। इसने लोहे का ताजियाना उठाया, सज्जाद की तरफ बढ़ा। इधर ज़ैनब ने देखा, आवाज दिए बीबियों मेरे करीब आओ। अरे सज्जाद को
نہ لگنے والا ہے، سجاد کو حلقے میں لیا، اپنے ہاتھوں سے سایہ کیا اور کہتی ہے سجاد کبھی خیموں کے سائے میں نہ جانا، ارے تیری پھوپھی زندہ ہے، اس پہ ہاتھ ڈالو میری۔ اے سجاد میں نے ایک امام کھو دیا، اب دوسرا امام نہیں کھو سکتی، ایک سہارا کھو دیا، دوسرا سہارا نہیں کھو سکتی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔